Sir, instead of spending money on iftar, dinners, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in the state. Minority के orphan जो students हैं, उनको दीजिए साहब कुछ पैसा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी की तुलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंद कारकुनों को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने आज सुबह रियासती असम्बली की इमारत में घुसने की कोशिश की। ये कारकुन इंतखाबात के दौरान तुलबा बरादरी से किए गए वादों को पूरा करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तकरीबन 11 बजे सैकड़ों ABVP के कारकुन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए असम्बली के करीब तक पहुंचे और फिर असम्बली की तरफ दौड़ने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने उनको असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया और फिर पुलिस की गाड़ियों में सफाबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इनमें से चंद इमारत असम्बली के गेट पर चढ़ने में कामयाबी हो गए। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। हमें बताना जरूरी होगा कि 1988 में भी यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वजीर P शिवशंकर के फर्जंद और यूथ कांग्रेस के उस वक्त के सदर सुधीर कुमार की क़यादत में असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर स्पीकर असम्बली G नारायण राव ने 30 से ज़्यादा कारकुनों को 1 महीने तक के लिए जेल को भेज दिया था और उस वक्त के कमिश्नर V अप्पा राव का गफलत और तसाहुल की पादाश में तबादला कर दिया था। होली की तातीलात के बाद रियासती असम्बली का बजट सेशन आज से दोबारा शुरू हुआ था। అసెంబ్లీ ముట్టడి ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి రాకముందు అనేక మాయ మాటలు చెప్పింది. కానీ ఈరోజు బిడ్డ కేసీఆర్ ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసావు. ఈరోజు పక్కనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ జగన్ 3 సార్లు విద్యా వ్యవస్థ పైన ఈరోజు సమీక్ష నిర్వహించారు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ ఈ యొక్క దుర్మార్గ కేసీఆర్ దొంగ కేసీఆర్ ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చి 7 సంవత్సరాలైనా ఒక్కసారి కూడా విద్యా వ్యవస్థ పైన సమీక్ష నిర్వహించారు. కాబట్టి కేసీఆర్ खैरताबाद से TRS के रुकन असम्बली D नागेंद्र ने आज असम्बली में CA, NPR और NRC का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत अक़लियतों और गरीबों को इत्मीनान दिलाए कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी को फ़रोग़ दें और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। CAA గురించి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గవర్నర్ గారి యొక్క వారి ప్రసంగానికి ఉద్దేశించి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పాంటేనియస్గానే ఇది త్వరలోనే శాసనసభలో ఒక రిజల్యూషన్ మూవ్ చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి వివిధ మైనారిటీ సంఘాలు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కమ్యూనిటీ, అంటే ఇందులో సిక్కులు ఉన్నారు, ఈసాయిలు ఉన్నారు, అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీస్ ఉన్నారు, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా సుమారు ఈ ఒక్క దాంట్లోనే సుమారు 30,000 సిగ్నేచర్స్తోని ఈ మైనారిటీస్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అధ్యక్ష, నేను తమ ద్వారా మీరు ఈ యొక్క ఇది వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ పంపిస్తూ ఉన్నాను. త్వరలోనే ఈ శాసనసభ ద్వారా ఒక సంకేతాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకంగా ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే గతంలో వేరే రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రం ఒక అన్ని రంగాల్లో ముందడుగుండి మరి సిఐ గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పార్లమెంట్లో కూడా ఈ సందర్భంలో దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. మన శాసనసభ ద్వారా అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టుకు కూడా ఒక అడ్వకేట్ని నియమించి దీని మీద మరి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పంపించాలని కూడా తమ ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నా. అధ్యక్ష, ఇది ఒక మంచి సంకేతం, ఎందుకంటే మన ఒక సెక్యులర్ రాష్ట్రం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఉంది, హిందూ ముస్లింకి అలం బర్దార్ అని. ఆ రకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంకా మనకు గౌరవం పెంచేటువంటి ఈ కార్యక్రమం కాబట్టి దీన్ని తమ ద్వారా నేను పంపిస్తాను. దీన్ని త్వరలోనే ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతాను. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు ప్రస్తావించినట్టు అంశం పరిశీలించబడుతుంది అధ్యక్ష. जनाब कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी पर शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मरकज़ी खतूत पर रियासती वक्फ डेवलपमेंट कौंसिल कायम करे।
असम्बली में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने 1999 से अब तक औकाफी जायदादों के मसाइल को उठाया, लेकिन हुकूमत सिलसिले में कोई मुस्बित इकदाम करने से खासी रही। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि दावत इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट की स्कीम को बर्खास्त करते हुए हुकूमत इसकी रकम यतीम मुसलमान बच्चों की फलाह बहबूद और मुस्लिम तलबा के तालीम पर खर्च करे। और सर मैं बार बार 99 से लेकर आज तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, तो वक्त औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। औकाफ की जायदाद हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की 3000, बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद, चंगी चरला और कितने ऐसी जायदादें, आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं। हुकूमत क्यों नहीं, मैं सर आपके जरिए मुतालबा करना चाहता हूं कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ तेलंगाना स्टेट वक्फ काउंसिल on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans on Waqf institution for development of prime Waqf properties in the state. Our neighboring states like Karnataka state has Waqf Council since 1992 and they have developed 59 Waqf properties with a total cost of 7 crores and more, sir. तो मैं आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि आप ये वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए सर, उसके साथ साथ kindly provide one-time incentive upon rupees 2 lakhs to minority students studying in IIT, IIMs, NIT, NLU, IISER and other prestigious institutes, sir. ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होगा, minority students के से अच्छा होगा. Sir, again provide special training to minority law graduates. Kindly select at least 2 candidates from each district and train them under government and senior advocates for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000. ये काम दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, ये काम हम भी कर सकते हैं कि 2 बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट में लेकर गवर्नमेंट लॉयर्स के अंडर में उनको ट्रेन करेंगे तो अच्छे वकील बनेंगे माइनॉरिटी में से. सर, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन इफ्तार डिनर्स, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in the state. माइनॉरिटी के ऑर्फन जो स्टूडेंट्स हैं उनको दीजिए सब कुछ पैसा, सिर्फ ये दूसरे चीजों के बजाय. सर, और एक मैं कहूंगा, ओपनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द माइनॉरिटी डेवलपमेंट. सर उसके साथ साथ सर मैं ये भी कहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर द बेटर एंड प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स मेंट फॉर माइनॉरिटीज. सर, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज होनी चाहिए सर, कि आप इतना पैसा दे रहे हैं, इतने स्कीम्स आपके हैं, क्या ये ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? एक कमेटी बनाइए उसकी, ताकि वो लोग ओवरसी कर सकें कि ये हो रहा या नहीं. प्रोवाइड रेमिडियल कोचिंग टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन उर्दू मीडियम स्कूल इन स्टेट as they are facing inconvenience to take up the subjects like English and other subjects, sir. Sir, open hostels or provide lodging facilities to separated divorcee Muslim women in every district. In every district. हमारे पास औकाफी जायदादें हैं, लैंड्स हैं, अगर जरूरत पड़े तो हम ये लैंड्स को ले सकते हैं साहब. ये मुस्लिम खवातीन जिनकी तलाक हो गई या अपने शौहरों से अलग रहते हैं उनको कर सकते हैं. रियासती वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने बताया कि रियासती हुकूमत गुर्दे के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस फराहम कर रही है और फी मरीज सालाना 1,80,000 रुपये खर्च कर रही है. वज़ीर सेहत खानसास काउंसिल में TRS के MLC सी सुभाष रेड्डी के सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि रियासत भर में 45 डायलिसिस सेंटर काम कर रहे हैं और हर सेंटर में 5 से 10 बिस्तरों की सहूलत फराहम की गई है. मौके में तालीम की कमिश्नर चित्रा रामचंद्रन ने 16 मार्च से रियासत भर के तमाम मदारिस को 23 अप्रैल तक निज दिन चलाने के लिए अहकाम जारी किए. उन्होंने बताया कि सरकारी मदारिस में 12:30 बजे मिड डे मील सरबराह किया जाएगा. उन्होंने तमाम रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं. गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने असम्बली इमारत के पास ABVP के कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की. उन्होंने एक बयान में कहा कि तलबा
तालीम के शोबे पर रियासती बजट में कटौती, फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। ఇవాళ ఏబీపీ కార్యకర్తలు అదేవిధంగా ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ కాలేజ్ పిల్లలు ఈ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ బడ్జెట్ పెట్టారు. దానికి ఒక ప్రొటెస్ట్గా చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. ఓకే, అందరికీ ఒక అధికారం ఉంది. వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగితే అసెంబ్లీ వరకు వాళ్ళు సౌండ్ వినిపించడానికి వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ అసెంబ్లీ లోపల ఏ ఆపోజిషన్ ఉండకుండా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు కలుపుకున్నారు. ఇంకా ఉన్న ఆపోజిషన్ కూడా మాట్లాడడానికి సమయం కూడా ఇయ్యరు. కానీ బయట నుంచి ఎవరికైనా ఏదైనా బాధలు కనుకుంటే, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనీసం అసెంబ్లీ వరకు వచ్చి చెప్పాలంటే కూడా అవకాశం ఇస్తలేరు. ఇవాళ ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ పైన లాఠీ చార్జ్ చేసినారు. 200-300 పై ఎక్కువ కార్యకర్తల్ని స్టూడెంట్స్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. అసలు ఇది న్యాయమా? మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మీరు యాద్ పెట్టుకోండి, ఇదే స్టూడెంట్ వల్లనే మనకు తెలంగాణ వచ్చింది. ఇవాళ ఇదే తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టూడెంట్స్ పైన లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు. యాద్ పెట్టుకోండి, ఇవాళ మీ సమయం నడుస్తుంది, కానీ వచ్చే సమయం ఇదే స్టూడెంట్సే ఉంటుంది. ఈ మాట మీరు యాద్ పెట్టుకోండి. हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की 1419वीं यम विलादत के सिलसिले में 14 मार्च हफ्ते को 8 बजे शब मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़ेर तमाम खिलवत मैदान पर जश्न मौलाए कायनात मनाया जाएगा। सेक्रेटरी मशावरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम खादरी फारूक पाशा ने बताया कि इस जलसे का मकसद मौजूदा कौमी व आलमी हालात के पस मंज़र में उख़्वत और अमन का पैगाम देना है। उन्होंने बताया कि सूफ़ी इस्लामी स्कॉलरों और मुख्तलिफ़ खानखाओं के सरबराहों की तंजीम मजलिस मुत्तहिदा मशाइख के कन्वीनर्स में सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी, सैयद ग़ुलाम समदानी अली खादरी और सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी अजीलानी पाशा शामिल हैं। समात किया है कि मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़ेर एहतमाम 14 मार्च बरोज़ हफ्ता मिलाद मैदान खिलवत पर दूसरा अजीम व शान जश्न मौलाए कायनात मुनक़िद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता एक कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के अजला से, इसके अलावा दीगर रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा से सामाइन के अलावा मुख्तलिफ़ खानखाओं के सज्जादगान व मुतवलियान ने भी शिरकत की थी। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी तमाम खानखाओं के ज़िम्मेदारान, सज्जादगान व मुतवलियान को मुत्तहिदा मजलिस मशाइख की तरफ से दावतनामे रवाने हो रहे हैं। इंशाअल्लाह उनसे पर्सनल कांटेक्ट भी किया जाएगा। इस मरतबा भी उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाएगा। जीनत रौनक स्टेज होंगे। और इनके अलावा सामाइन की कसीर तादाद भी रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तौसीफ़ फरमा दी है। महाराष्ट्र से, नांदेड़ से काफ़ी मुरीदीन व मुतवस्सिलीन खानकाए क़ादरिया मूसविया इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी तमाम रियासत के मुहिबान अहले बैत अत्हार से ख्वाहिश है और अपील है कि इस जश्न मौलाए कायनात में शिरकत फरमाते हुए इसे एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस बनाएं। शुक्रिया। जीएसएमसी के कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने आवाम से अपील की कि वो 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से कबल अदा कर दें। उन्होंने बताया कि इस साल 1800 करोड़ रुपये का निशाना मुकर्रर किया गया है और अब तक 1291 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल कलेक्टरों, सिटीजन सेंटर्स और ऑनलाइन अदा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन के चार्जेस बल्दिया बर्दाश्त करेगी। लोकेश कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अगर कोई वजाहत या सराहत दरकार हो तो वो मुतालिका सर्कल के डिप्टी कमिश्नरों से रब्ता कायम कर सकते हैं। नवाई इलाके नानकराम गुड़ा गच्चीबौली में 12 एकड़ अराजी पर हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने की नई इमारत की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है और तवक्को है कि इमारत आइंदा साल तक तैयार हो जाएगी। इस तामीर पर $350 मिलियन का खर्चा आ रहा है। 1000 से ज़ायद अमरीकी और हिंदुस्तानी अफराद तामीर के काम में लगे हुए हैं। पसमानदा तबकात की भलाई के वजीर जी कमलाकर ने बताया कि रियासत हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर 2014 से 2019 तक 45 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम खर्च की है और इससे 6,15,000 खानदानों को फ़ायदा मिला है। रियासत असम्बली में एक सवाल का जवाब देते हुए कमलाकर ने बताया कि हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ रहने वालों ने इस स्कीम से
सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। वज़ीर मौसम ने बताया कि पसमानदा तबकात की भलाई पर 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। సమాధానంగా బీసీ సంక్షేమ శాఖ నుంచి 1900.84 కోట్లు, మైనార్టీ సంక్షేమం నుంచి 1021, మరియు గిరిజన సంక్షేమం నుంచి 614, ఎస్సీ శాఖ నుంచి 1036, మొత్తంగాను ఇప్పటివరకు 4572.97 కోట్ల రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి రూపేణ ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. బీ ప్రశ్నకు సమాధానంగా మొత్తం 6,15,573 మంది లబ్ధిదారులకు గాను ఇప్పటివరకు కళ్యాణ లక్ష్మి రూపేణ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. సి ప్రశ్నకు సమాధానంగా 2014-15 నుండి 2019-20 సంవత్సరం వరకు బీసీలు, ఈబీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీ, మైనార్టీల కోసం కళ్యాణ లక్ష్మి సాధివారి పథకాల కింద జిల్లా వారి మరియు సంవత్సరం వారి ఆ వివరాలన్నీ కూడా తమని ముందు టేబుల్ నుంచి అధ్యక్షుల వారికి అనుమతితోటి సభ్యులుగా చేయలేదు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఇది జిల్లా వైజ్ ఇచ్చాము అధ్యక్ష. ఇంకెవరైనా సభ్యులుగా కోరితే కాన్స్టిట్యూన్సీ వైజ్ కూడా ఇచ్చేది కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक रियासती हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को हड़ताल की मुद्दत के दौरान की तनख्वाह जारी कर दी है। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बताया कि महकमे फाइनेंस ने 235 करोड़ रुपये जारी किए। चीफ मिनिस्टर ने आरटीसी को खसारे से बाहर निकालने के लिए 1000 करोड़ रुपये का वादा भी किया था और उसके लिए 2020 और 21 के बजट में यह रकम मुख्तस भी की गई है। 2 बाइक सवारों ने आज सुबह एलबी नगर में एक खातून के गले से 2 तोले वजनी तलाई चैन उड़ा ली। ये वाक़या हिमागिरी कॉलोनी में उस वक्त पेश आया जबकि मुतासरा खातून तन्हा सड़क से गुजर रही थी। बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जिला कुत्तागुड़म के नीलेंद्री पेट के जंगलात में धमाकू अशिया और इनकलाबी लिटरेचर बरामद किया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सुनील दत्त के मुताबिक छत्तीसगढ़ से भद्राद्री, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालापल्ली और मुल्क अजला में इंतहा पसंदों के दाखिले होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें इस जंगलाती इलाके में तलाशी की मुहिम चला रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर गश्त करने वाली नफरत आमेज तकरीर और झूठी न्यूज पर मरकज से जवाब तलब किया है। बीजेपी के लीडर के.एन. गोविंद आचार्य की दरखास्त पर चीफ जस्टिस D.N. पाटिल और जस्टिस हरिशंकर पर मुश्तमिल बेंच ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल को एक नोटिस भी जारी की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की मुंतखबा हुकूमत को गैर मुस्तकम करने के लिए मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। अपने ट्विटर में उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में तेलों की कीमत पर 35% की हद तक कमी हुई है और इसका फायदा आवाम तक पहुंचाने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म तोड़जोड़ की सियासत में मसरूफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत ऐसे में 60 रुपये फी लीटर हो जानी चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस से मुस्तफी होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में हुक्मरान जमात के सदर JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जराये के मुताबिक उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा और फिर मरकजी काबीना में शामिल किया जाएगा। बीजेपी को यकीन है कि वो सिंधिया की तायीद करने वाले 22 कांग्रेसी अरकान असेंबली की
मदद से मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि कमलनाथ की ज़ेर क़यादत हुकूमत अक़लियत में आ गई है। कांग्रेस में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज सिंधिया ने कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अपना मकतूब इस्तीफ़ा रवाना कर दिया था। 2002 से पार्लिमानी हल्के गुना से लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले सिंधिया 2019 का चुनाव हार गए थे। उन्होंने आज अपने वालिद साबिक़ मरकजी वजीर माधवराव सिंधिया की 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस से बेताल्लुकी होने का फैसला किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी के दोनों सरकारों में ममलकती वजीर भी रहे हैं। वो 2014 से 2019 तक कांग्रेस के विप भी रहे। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है,
प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के उन 7 अरकान की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर पार्लियामेंट के जारिया इजलास के अख्ताम तक मुअत्तल कर दिया था। इस मसले पर तश्कील शुदा अरकान की सब कमेटी के इजलास के बाद स्पीकर ने यह फैसला लिया। इन अरकान में असम के गौरव गोगोई और दूसरे शामिल थे। होली की तातीलात के बाद आज जो ही दोबारा इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस के अरकान मुअत्तल शुदा अरकान की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाने लगे। कर्नाटक में 76 साल शख्स जो कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज था फौत हो गया और उसकी तिबी जांच पॉजिटिव साबित होने के बाद यह मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वाला पहला शख्स होगा। गुलबर्गा के मोहम्मद हुसैन सादिक का गुलबर्गा के एक दवाखाने में इलाज जारी था। उन्हें मुसलसल खांसी और सांस लेने में तकलीफ पर दवाखाने में शरीक करवाया गया था। उनके तिबी मायने बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज को रवाना किए गए। उनका 3 दिन से इलाज जारी था। उनके रंगाने खानदान ने मजीद इलाज के लिए वो हैदराबाद भी ले गए थे। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने बताया कि ये बताना मुश्किल है कि आया ये मौत कोरोना वायरस से हुई है या किसी और वजह से। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन आटा ने गुज़िश्ता इतवार को न्यू जर्सी के अल्बर्ट पैलेस में यौम ख़वातीन मनाया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजा से ताल्लुक़ रखने वाली 350 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की। न्यू जर्सी के गवर्नर की अहलिया ट्रेसी आर्मस्ट्रांग और डॉक्टर इंदु पटेल मेहमान मुकर्ररीन में शामिल थे। सदर अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन पी भीम रेड्डी और ख़वातीन के शोबे की निगरान इंदिरा रेड्डी ने खैर मकदम किया। महबूबनगर के मौजे मरकलाबाद के करीब आज सुबह एक लारी और आरटीसी बस में तसादुम के नतीजे में लारी ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि बस ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि महबूबनगर से तांडोर जाने वाली लारी का टायर फट गया था, जबकि तांडोर बस डिपो की बस मुखालिफ सिम से आ रही थी। मुतफी लारी ड्राइवर को जो लारी में फंस गया था निकालने के लिए मुकामी अवाम और पुलिस को तकरीबन आधा घंटा लगा और वो दवाखाना ले जाने के रास्ते में दम तोड़ दिया। मंशियाल में एक लारी के मोपेड को टक्कर दे देने के नतीजे में यौम अजरत पर काम करने वाला 32 साला मौलाना बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि पकवान के चूल्हे बनाने वाला मौलाना कल रात एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था। हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। लशेटीपेट के इंस्पेक्टर दत्तादरी ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ड्राइवर लारी छोड़कर फरार हो गया। मौलाना के पसमानदगान में एक बेवा के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।